ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: ألم يجدك يتيما فآوى. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين يا خاتم النبيين. اللہ تعالی مجدہ کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین مبارکہ کے تصدق سے بحمدہ تعالی آج جمعۃ المبارک کے عظیم بابرکت دن اللہ رب العزت کے حضور اس کے گھر میں سجدہ ریز ہونے کے لیے اور اس کا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے ہم موجود ہیں. آج کی ہماری اس نشست کا موضوع وہ تاریخ اسلام کی ایک بڑی ہی اہم شخصیت اور آقا کریم علیہ السلام کی بڑی جانثار شخصیت، جنہوں نے جب سے حضور کو پایا تب سے اپنے آخری سانس تک آقا علیہ السلام کا ساتھ نبھایا اور اپنی ساری زندگی حضور کے خدمت کے لیے وقف فرمائی. میری مراد حضور کے چچا جان، جن کو ہم شیخ بطحا کہتے ہیں، جن کو محافظ اسلام کہتے ہیں اور جن کو جانثار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، میری مراد حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے. آج ہم ان کی حیات مبارکہ کا جس قدر ہو سکے گا وہ تذکرہ ہم کریں گے اور ان کی خدمات کو دیکھیں گے جو اسلام اور بالخصوص آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے لیے ہے. یہاں ایک بات میں ابتداء عرض کر دینا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے ذہنوں کے اندر ایک کلیئرٹی رہے، بلکہ دو باتیں عرض کر دیتا ہوں. پہلی بات وہ عقیدے کے حوالے سے ہے اور وہ یہ ہے کہ اسلام کی تاریخ میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے ہمیشہ سے امت میں علماء کے اندر ایک چھوٹا سا اختلاف رہا ہے. بعض علماء ان کے ایمان کے قائل ہیں اور بعض علماء ان کے عدم ایمان کے قائل ہیں. میں نے لفظ یہاں پر کفر کا نہیں بولا. یہ بھی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہمارے یہاں پہ احتیاطی کے اندر لوگ معاذ اللہ اس نسبت کا حیا نہیں کرتے اور حیا کے تقاضوں کو چھوڑتے ہوئے اور آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ جو نسبت ہے اور اس نسبت کے تقاضوں کو چھوڑتے ہوئے تو ان کے لیے لفظ کافر استعمال کر دیتے ہیں کہ جو جائز اور درست نہیں ہے. تو میں نے عرض کیا کہ ایک موقف ان کے ایمان کا ہے اور ایک موقف ان کے عدم ایمان کا ہے. عدم ایمان کا معنی یہ ہے کہ وہ علماء کا موقف یہ ہے کہ ہم تک جو ایک روایت بخاری شریف کی پہنچی ہے اس کے مطابق جب آخری وقت میں آقا علیہ السلام نے ان کو ایمان پیش کیا تو ان کا جملہ یہ تھا کہ یہ قریش کے لوگ وہ سردار بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ
ताना देंगे कि अबू तालिब अपने बाप दादा के दीन से फिर गया है। बस ये इतनी रिवायत है, इसके सिवा इसमें और कुछ भी नहीं, बस ये एक ही रिवायत है। तो इससे अखज़ करते हुए उलमा ने ये नतीजा निकाला उनके अदम ईमान का। तो इससे ज्यादा किसी ने इस पर गुफ्तगू या तकरार नहीं की। दूसरा मौक़िफ़ जो उम्मत के अंदर उलमा का है वो उनके ईमान के कायल है। उसकी वजूहात वो आज की हमारी नशिस्त के अंदर डिस्कस होंगी कि जो उनकी खिदमात हैं इस्लाम के लिए और आका अलैहिस्सलाम के लिए, और खुद जो उनका अमल है, जो उनकी ज़बान से उनके अक़वाल हैं, जो उनके अशआर हैं। तो मैं फिर अर्ज कर रहा हूं कि ये दो मौक़िफ़, एक ईमान का और एक अदम ईमान का, इस पर लफ्ज़ कुफ्र नहीं कहना चाहिए। ये बेअदबी है, ये आका अलैहिस्सलाम की निस्बत का हया न करना है, और ये शदीद जहालत होगी कि अगर हम माअज़ल्लाह उनकी निस्बत कुफ्र की तरफ करें, बल्कि हम अदम ईमान का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। एक बात, इसी बात के ज़ेल के अंदर एक बात अर्ज कर दूं कि चाहे लोग ईमान के कायल हैं या वो लोग जो अदम ईमान के कायल हैं, उनमें से किसी एक भी ग्रोह ने हजरत अबू तालिब की शान में कोई कम जुमला या अल्फाज नहीं इरशाद कहे या लिखे, इसलिए कि हम कुतुब अहदीस को, कुतुब सीरत को जितना भी पढ़ते चले जाएंगे उसमें एक ही चीज नजर आएगी, और वो हजरत अबू तालिब की शान और उनकी खिदमत नजर आएगी। लिहाजा उनके मुताल्लिक कमजोर बात किसी ने भी नहीं की, उम्मत में कभी भी नहीं। तो मैंने जो कहा कि एक छोटा सा कमजोर जुमला है उसको भी हम दूर कर देते हैं। वो जिनका मौक़िफ़ है ये इल्मी मौक़िफ़ है, क्योंकि ये खालिस इल्म अकीदा की बहस है, तो इस वजह से उलमा इस तरफ चले गए। अदरवाइज जो उम्मत का वतीरा रहा, जिन्होंने बड़ी बड़ी कुतुब अहादीस और कुतुब सीरत नकल की हैं, जिन्होंने अवाइल दौर के अंदर कुतुब सीरत नकल की, उन्होंने भी हजरत अबू तालिब का तज़किरा हमेशा खिदमात और अच्छे कलिमात और अल्फाज से ही किया है, और हम उन्हीं की सुन्नत पर चलते हुए आज उनकी खिदमात का तज़किरा करने जा रहे हैं। तो गुफ्तगू का आगाज, दूसरी बात अल्लाह की शान है कि वो मैंने पहले करनी थी और वो मेरे जहन से अल्लाह पाक ने महफ़ फरमा दी। तो इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कोई मंशा होगी, मुझे याद आई तो मैं इंशाअल्लाह गुफ्तगू के दौरान कर दूंगा। मैं अपनी बात अर्ज कर देता हूं कि हम हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के ईमान के कायलीन में से हैं। हम उनके ईमान के कायल हैं। आका अलैहिस्सलाम के साथ उनकी एक निस्बत है, उनकी खिदमात हैं, और ये मैंने अर्ज किया कि उम्मत का एक बड़ा गिरोह इस तरफ क्या है। इसमें मैं एक बड़ा नाम आपके सामने अर्ज कर देता हूं। काजी शेख ज़ैनी दहलान मक्की रहमतुल्लाह अलैह, जो उस्ताद भी हैं और शेख भी हैं अशाह इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह। काजी शेख ज़ैनी दहलान ये मक्का के बहुत बड़े मुहद्दिस थे, बहुत बड़े मुहद्दिस। इन्होंने बड़ी कसीर कुतुब लिखी हैं। उनमें से इनकी एक किताब का उन्वान है अस्नल मतालिब फी निजात अबू तालिब, कि हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की निजात पर बड़े खूबसूरत अल्फाज और कलिमात, जिसका तर्जमा पाकिस्तान में अल्लामा साइम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, और खुद उन्होंने भी हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के ईमान के ऊपर एक अलग से किताब भी मुरत्तब की। फिर इसी तरह हमारे शेख और हमारे मुरब्बी और हमारे उस्ताद शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी दामद बरकातुहुल आलिया भी उन्हीं हस्तियों में से हैं जो हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के ईमान के कायल। तो खैर ये गुफ्तगू हमारा मौजू हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की शख्सियत और उनकी खिदमात और उनकी सीरत रहेगी।
اور ان کا آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ جو جانثاری کا تعلق ہے، جو قربانیاں ہیں ان کا تذکرہ آج ہم کریں گے، تاکہ اپنے ایمان کو اور اپنی نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزید قوی تر کر سکیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے جو قرآن مجید کی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، یہاں پہ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں وہ اس دور کے چاہے مفسر ہوں یا پہلے دور کے مفسر ہوں، ان میں سے ہر ایک نے اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کا تذکرہ لازمن کیا ہے، اور وہ آیت کریمہ سورہ الضحیٰ کی آیت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، کہ اے میرے محبوب، یہ اللہ رب العزت اپنے محبوب سے محبت کا اظہار فرما رہا ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، محبوب آپ غم زدہ نہ ہو، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے۔ وہاں جہاں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پر اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ محبوب آپ کا رب آپ کو کیسے چھوڑ سکتا ہے جب آپ کے رب نے آپ کو یہ نعمتیں عطا کی ہیں، جب ان نعمتوں کا تذکرہ کیا تو ان میں سے ایک نعمت اللہ رب العزت نے فرمائی، فرمایا محبوب علم یجدک یتیمن، کیا ایسا نہیں تھا کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ چکا تھا، فآویٰ، تو اللہ رب العزت نے آپ کو اس یتیمی کے حالت کے اندر معزز مکرم ٹھکانہ عطا فرمایا۔ تو جہاں اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کی شان یتیمی کے ٹھکانے کا تذکرہ کیا، تمام مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ اس میں پہلا نام حضور کے دادا حضرت عبد المطلب کا ہے، اور حضرت عبد المطلب کے بعد دوسرا نام حضور کے چچا حضرت ابو طالب کا ہے۔ جب آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو آقا علیہ السلام کے والد گرامی حضرت عبداللہ وصال فرما چکے تھے، حضور کی ولادت سے 2 ماہ قبل تقریباً 55 دن پہلے ان کا وصال ہو چکا تھا۔ آقا علیہ السلام کی جو ابتدائی کفالت فرمائی وہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے دادا جان ہیں انہوں نے فرمائی، اور 2 سال پھر آقا علیہ السلام کو حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس بھیج دیا گیا، اور پھر آقا علیہ السلام 2 سال وہاں رہے۔ پھر انہوں نے آ کے کچھ عرض کیا کہ ان کو آقا علیہ السلام کی وہاں جو واقعات ہوئے ان کا تذکرہ ہم جب انشاءاللہ سیرت کی گفتگو کریں گے تو تفصیلات سے ہم وہاں پر جائیں گے۔ پھر 2 سال مزید حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس آقا علیہ السلام نے گزارے، پھر واپس تشریف لائے۔ تو پھر یہاں پر جو کفالت کی آقا علیہ السلام کی وہ حضرت عبد المطلب نے کی۔ اب جب حضرت عبد المطلب کے بھی وصال کا وقت آیا تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنے تمام بیٹوں کو جمع کیا، اور تمام بیٹوں کو جمع کر کے انہوں نے ان کو دیکھا کہ میں ان کو اپنی وصیت کر کے جاؤں۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام کے حوالے سے وہ جانتے تھے کہ حضور کون ہے، یہ بات بڑی اہم ہے۔ حضرت عبد المطلب کوئی ایسی شخصیت نہیں تھے کہ انہیں خبر نہیں تھی اور صرف پوتا ہونے کی محبت تھی ان کے دل میں، نہیں، ایسا نہیں تھا۔ ان کو یمن میں ایک یہودی عالم بتا چکا تھا کہ آپ نبی آخر الزماں کے دادا جان ہیں اور آپ نے ساری نشانیاں پوری ہیں، اور یہاں تک وہ بتا چکا تھا کہ آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ کا رشتہ کس خاندان میں جا کر کے کرنا ہے۔ اس نے بتایا تھا کہ آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ کا رشتہ جا کر کے مدینہ کے ایک خاندان میں کرنا ہے، بنو زہرہ کے اندر کرنا ہے۔ تو پھر حضرت عبد المطلب حضرت عبداللہ کا رشتہ لے کر مدینہ پہنچے، تو حضرت عبد المطلب تو اتنا جانتے تھے۔ پھر نجاشی کے دربار میں پہنچے تو وہاں نجاشی نے ان کو دیکھ کر کے کہا
کہ آپ کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان ہونے کی ساری نشانیاں پوری ہیں۔ تو ایسا نہیں تھا کہ حضرت عبد المطلب جانتے نہیں تھے کہ میرا بیٹا میرا پوتا کون ہے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بالکل کلیئر تھے۔ تو جب انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا تو انہوں نے اپنی ایک ہی وراثت تقسیم کی، اور وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور وہ اس انداز میں کی کہ انہوں نے حضرت ابو طالب کو قریب بلایا اور ان سے کہا کہ اے میرے بیٹے، میں اپنے اس بچے اپنے اس بیٹے کے حوالے سے تجھے وصیت کرتا ہوں، اور وصیت یہ کرتا ہوں کہ بیٹے میں نے دیکھا ہے، تمہارے دل کو میں نے دیکھا ہے، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ میرے باقی بیٹوں کی نسبت تمہارے دل میں نے اس کی محبت سب سے زیادہ پائی ہے۔ اب یہ بات حضرت عبد المطلب کب ارشاد فرما رہے ہیں؟ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارکہ 8 برس ہے۔ کتنی ہے؟ 8 برس۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ ان باتوں پر آگاہ ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت ابو طالب کی کفالت میں دے رہے ہیں، تو تب بھی وصیت یہی فرما رہے ہیں۔ تو گویا حضرت ابو طالب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے حوالے سے ان کو وہ حضور کو صرف اپنا بھتیجا نہیں دیکھ رہے تھے، وہ اپنے والد کی وصیت اور نصیحت دیکھ رہے تھے۔ گویا 8 سال جب حضور کی عمر مبارک تھی، حضرت ابو طالب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام نبوت سے اس وقت بھی واقف ہو چکے ہیں۔ تو حضرت عبد المطلب نے ان سے فرمایا کہ بیٹے، آپ نے میرے اس بیٹے کا خیال رکھنا ہے، اس کو کبھی جان سے جدا نہیں کرنا، اور اس کی حفاظت کرنی ہے، اس امانت کی۔ اب آئیے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا مختصر تعارف کر دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ کا اصل نام عبد مناف ہے۔ اصل نام کیا ہے؟ عبد مناف۔ یہ حضور کے اجداد میں سے ایک ہستی کا نام ہے، عبد مناف۔ تو انہی کے نام پر حضرت عبد المطلب نے ان کا نام کیا رکھا؟ عبد مناف۔ طالب ان کے سب سے بڑے بیٹے تھے، ان کی کنیت کی وجہ سے ان کو پکارا جاتا تھا ابو طالب، طالب کے والد، طالب کے باپ، ابو طالب، یہ طالب کے والد ہیں۔ تو یہ عربوں کا ایک رواج تھا کہ وہ اس انداز سے لوگوں کو بلاتے اور پکارتے تھے۔ تو اصل نام ان کا عبد مناف تھا۔ بولیے اصل نام کیا تھا؟ عبد۔ اب اگلی بات بڑی اہم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت ابو طالب کی قربت دیکھیں کہ کیا ہے، اور وہ قربت یہ ہے کہ حضور کے دادا جان حضرت عبد المطلب، انہوں نے کئی شادیاں کی، اور جو ان کی ساری اولاد ہے وہ ان کی باقی ازواج میں سے ہے، باقی ازواج میں سے۔ لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ حضرت ابو طالب اور حضرت عبداللہ یہ دونوں ایک ہی ماں کے دونوں بیٹے ہیں، یعنی ان کی ماں بھی ایک ہی ہے۔ اتنی قرابت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت ابو طالب سے۔ اب آگے چلیے، حضرت ابو طالب کی والدہ کا نام فاطمہ ہے۔ والدہ کا نام کیا ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے۔ حضرت ابو طالب کی والدہ کا نام کیا ہے؟ آپ کی زوجہ کا نام بھی فاطمہ ہے، جو حضور کی چچی جان ہے، ان کا نام کیا ہے؟ فاطمہ۔ یہاں میں مختصر ان کا تعارف بھی آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ جو حضور کی چچی جان ہے ان کا نام فاطمہ بنت اسد ہے، جو حضور مولا کائنات کی والدہ ہیں، جنہوں نے حضور مولا کائنات کو کعبہ کے اندر جنم دیا ہے۔ یہ میں اس ہستی کا ذکر کر رہا ہوں، حضرت فاطمہ بنت اسد کا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اولین ایمان لانے والے لوگوں میں سے وہ ایک ہستی تھی۔ اور جب ان کا وصال ہوا، وہ اتنا طویل عرصہ حضور کے ساتھ رہی، تقریباً 54 برس کے قریب، 54 یا 56 برس کے قریب حضور کے ساتھ رہی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ کہ جب ان کا وصال ہوا مدینہ کے اندر، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی قبر کی کھدائی میں بھی حصہ لیا، پھر اپنی قمیص عطا کی اور فرمایا کہ یہ میری ماں فاطمہ کو پہنائی جائے۔
फरमाया इसलिए कि मेरी अपनी मां के बाद मेरी चची जान ने मेरी परवरिश ऐसे की है जैसे मां अपनी औलाद की करती है। और फिर आका अलैहिस्सलाम ये शान भी हजरत फातिमा बिनते असद की है कि हुजूर उनकी कब्र के अंदर तशरीफ फरमा हुए लेट गए और फिर वहां पर दुआ की कि बारी ताला ये मेरी मां फातिमा की कब्र है, मेरे मौला इस कब्र को कशादगी अता फरमा। हुजूर खुद इसलिए तशरीफ फरमा। लोगों ने पूछा कि या रसूल अल्लाह आप खुद इस कब्र के अंदर लेटे क्यों? फरमाया इसलिए कि ये मेरी मां फातिमा की कब्र है। कब्र अपने अंदर आने वाले हर शख्स पर तंग होती है। मैं नहीं चाहता कि मेरी मां फातिमा जिसने मुझे अपनी आगोश दी थी और बचपन में मुझे पाला था मेरी मां के बाद, मैं नहीं चाहता कि वो आगोश जिसने मुझे पाला है जब कब्र की आगोश में जाए तो कब्र उन पर तंग हो जाए। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि मेरी मां फातिमा की कब्र को कुशादा फरमा। ये है हजरत अबू तालिब की ज़ौजा फातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो मैंने अर्ज किया कि हजरत अबू तालिब की वालिदा का भी नाम फातिमा, उनकी ज़ौजा का भी नाम फातिमा और उनकी बहू का नाम भी क्या है? बोलिए। अब यहां से एक और नुक्ता अर्ज करता। आका अलैहिस्सलाम एक रोज हुजूर मौला कायनात के घर तशरीफ फरमा है और आका अलैहिस्सलाम ने पूछा कि क्या तुम्हें मालूम है कि मैंने अपनी शहजादी फातिमा का नाम फातिमा क्यों रखा है? तो हुजूर मौला कायनात ने फौरन लपक कर अर्ज किया या रसूल अल्लाह आप खुद ही इरशाद फरमा दें कि इसकी क्या वजह है। तो हुजूर ने फरमाया इसलिए रखा है कि फातिमा का माना है फतमा, आग से दूर। फरमाया इसका नाम फातिमा इसलिए रखा है कि अल्लाह ने इसको आग से बरी फरमा दिया है। अगर आपको हमारी गुफ्तगू याद हो जो हमने एक जुमातुल मुबारक में रमजान के जुमा में की थी और जिसमें हमने ये सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा के उनके नाम, उनकी कुन्नियत और उनके मानी पर गुफ्तगू की थी, तो उनमें हमने ये गुफ्तगू की थी। और इस हदीस मुबारका का अगला हिस्सा या एक और हदीस मुबारका मुख्तलिफ, ये 3 रिवायात है। पहली रिवायत है कि फरमाया फातिमा को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस फातिमा को आग से दूर कर दिया है, तो इस वजह इसका नाम फातिमा है। दूसरी रिवायत में फरमाया वज़ुर्रियतहा, फरमाया फिर इसकी ज़ुर्रियत को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आग से दूर फरमा दिया है। फरमाया वमुहिब्बीहा, और इससे मोहब्बत करने वालों को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आग से दूर फरमा दिया। ये सय्यदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा की शान और फातिमा नाम के मानी है। अब इसका इतलाक यहां पर देखिए कि वो हजरत अबू तालिब जिनकी वालिदा भी फातिमा है, जिनकी ज़ौजा भी फातिमा है, जिनकी बहू भी फातिमा है, यानी वो हर तरफ से फातिमा के हिसार में है, यानी वो आग से हमेशा के लिए दूर कर दिए गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी जनाब से एहतमाम फरमाया हजरत अबू तालिब के लिए कि उनको आग से ऐसे बरी फरमाया है कि उनको फातिमा का हिसार अता कर दिया, फातिमा का जुर्मत अता कर दिया। हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के हवाले से अगली बात अर्ज कर, एक भी रिवायत मौजूद नहीं है, एक भी रिवायत जिसमें यह साबित हो कि हजरत अबू तालिब ने कभी बुत परस्ती की है या कभी शराब नोशी की है। तो यहां से जो बात समझ में आती है कि वो मुशरिक तो थे ही नहीं, मुशरिक तो थे ही नहीं, वो अपने वालिद हजरत अब्दुल मुत्तलिब की तरह मुवाहिद थे, अल्लाह की जात और तौहीद पर तो ईमान रखते ही थे। अब रहा सवाल उनके ईमान के इस पहलू का कि आका सल्लल्लाहु की जात पर ईमान लाए या नहीं लाए, तो आइए ये बात भी चलकर बुखारी शरीफ और सिहासिता की रिवायात को संगाल कर देखते हैं। वहां पर हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इमाम बुखारी ने इस रिवायत को मुतअद्दिद मर्तबा नकल किया है। और वो रिवायत क्या है? फरमाया कि मक्का के अंदर कहर पड़ गया, बारिश नहीं हो रही थी, बारिश नहीं हो रही थी। कोई जाकर के कहता कि लात और उज्जा की कसम, और उसकी कसम देकर अल्लाह के हुजूर हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें बारिश अता फरमा दे। कोई वास्ता किसी बुत का वास्ता देता, कोई किसी बुत का वास्ता देता।
वहां एक शख्स दाखिल हुआ, उसने कहा तुम्हारे दरमियान औलाद इस्माइल मौजूद हैं, जाकर उनके वास्ते और वसीले से अल्लाह के हुजूर दुआ करो। तो उनमें से एक शख्स दौड़ता हुआ हज़रत अबू तालिब के पास आया। उसने कहा कि अबू तालिब, कहत की वजह से जानवर मर रहे हैं, हम खुद भूखे प्यासे हैं, हम तुम्हारी खिदमत के अंदर अर्ज करते हैं कि आओ तुम काबतुल्लाह के अंदर दुआ करो। अब हज़रत अबू तालिब ने दुआ कैसे की? उन्होंने दुआ ऐसे की कि उन्होंने आका अलैहिस्सलाम को गोद में उठाया, गोद में उठाकर काबतुल्लाह में तशरीफ लाए और लाकर आका अलैहिस्सलाम की पुष्प मुबारक काबतुल्लाह के साथ लगा दी और हुजूर के चेहरे अनवर को देखकर अल्लाह के हुजूर दुआ की। जहां उन्होंने हाथ बुलंद किए वहां आसमान पर बादल आए और इधर छम बारिश बरसना शुरू हो अब यहां एक सवाल है कि अगर वो आका अलैहिस्सलाम को सिर्फ अपना भतीजा मानते होते तो भतीजे के वसीले से वो दुआ कैसे कर सकते? भतीजे तो उनके और भी थे, भाई तो उनके और भी थे, अपनी औलाद मौजूद है, तालिब मौजूद है, अकील मौजूद है, जाफर मौजूद है, हुजूर मौला कायनात उनकी पैदाइश बाद में हुई तो उनकी अपनी औलाद है, उनके भतीजे हैं, उनके अपने भाई हैं, हजरत हमजा हैं, हजरत अब्बास हैं, हजरत हारिस हैं, तो ये सारी शख्सियात भी तो मौजूद थी। आका अलैहिस्सलाम के वसीले से दुआ क्यों मांगी? इस वजह से कि उनको अपने बाबा जान हजरत अब्दुल्ला की वसीयत याद थी जो उन्होंने अपने वक्त विसाल की थी कि मेरे बेटे, मैं तुम्हें एक बड़ी भारी अमानत देकर के जा रहा हूं, इसकी हिफाजत करना। और वो भारी अमानत ये थी कि वो जानते थे कि आका अलैहिस्सलाम को ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खातमुन नबिय्यीन बनाया है। आगे चलिए, अब यहां एक और बात अर्ज करता, एक बड़ी ईमान अफरोज रिवायत है आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। इसको सुनन इब्न माजा ने भी नकल किया, बुखारी शरीफ ने भी नकल किया, इमाम बहकी ने भी नकल किया। इसका एक हिस्सा और इसका दूसरा हिस्सा वो दीगर कुतुब अहदीस और कुतुब सीरत के अंदर आता है। इब्न हिशाम ने इसको नकल किया, शरह बुखारी के अंदर इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने फतहुल बारी में इसको नकल किया है। और वो रिवायत क्या है? वो रिवायत है हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो फरमाते हैं कि एक मदीना के अंदर, मदीना का वक्त है, मदीना का दौर है, वहां आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक अराबी आया। उसने दरखास्त पेश की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे जानवर हलाक हो गए, हमारे ऊंट हलाक हो गए, या रसूलल्लाह हमारे लिए बारिश की दुआ फरमाएं, कहतज़ाली बहुत ज्यादा हो चुकी है, खुश्कसाली बहुत हो चुकी है। आका अलैहिस्सलाम मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए, हुजूर ने दुआ फरमाई और जैसे ही हाथ बुलंद किए इधर से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बारिश अता फरमा दी, बारिश अता फरमा दी। जब ये बारिश अता फरमा दी, आका अलैहिस्सलाम यहां पर मुस्कुराए और मुस्कुराकर हुजूर फरमाने लगे, अल्लाह अबू तालिब पर खैर फरमाए, अल्लाह अबू तालिब पर खैर फरमाए। आज जिंदा होते तो उनकी आंखें ये मंजर देखकर ठंडी हो जाती। कौन है जो हमें उनका कलाम सुनाएगा? हुजूर मौला कायनात खड़े हुए, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, आप इस कलाम की बात कर रहे हैं? ये हजरत अबू तालिब के नातिया अशार हैं। यहां एक और बात भी अर्ज कर दूं, आका अलैहिस्सलाम की जब से नात लिखी जा रही है, हुजूर के सबसे पहले नात खान का नाम भी हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम, सबसे पहले नात खान। और वो क्या है? फरमाया वो खूबसूरत सफेद रोशन चेहरा जिसके वसीले से हम दुआ मांगते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत बारिश अता फरमाता है। सिमारुल यतामा इस्मतुन मिन अरामिली। और आगे फरमाया यलूदुल हल्लाकु मिन आलि हाशिमिन फहुम इंदहु फी निअमतिन व फादिली। आका अलैहिस्सलाम के अशार सुनना चाहते थे, हुजूर मौला कायनात ने अशार पढ़े कि या रसूलल्लाह, आप इन अशार की ख्वाहिश फरमा रहे हैं जिसमें हज़रत अबू तालिब फरमाते हैं वो रोशन चेहरे वाले जिनके रुख अनवर के वसीले से
बादलों से बारिश मांगी जाती है, वो यतीमों की पनाहगाह। आका अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 8 बरस है, और हजरत अबू तालिब का अकीदा ये है कि ये यतीमों के भी वाली हैं और ये बेवाओं के भी वाली हैं। ये यतीमों की पनाहगाह है और बेवाओं के मुहाफिज हैं। और आगे फरमाया कि आले हाशिम के तबाहाल लोग उनकी पनाह लेते हैं, बस उनके पास आकर नेमतों और फजलो करम में मगन हो जाते हैं। ये हजरत अबू तालिब उस वक्त पढ़ रहे हैं जब आका सलाम का भी बचपन है। हुजूर की उम्र मुबारक 8 या 10 बरस है, तो हजरत अबू तालिब उस वक्त ये अशार पढ़ रहे हैं। और आका अलैहिस्सलाम मदीना में ख्वाहिश इजहार कर रहे हैं कि हमें कोई अबू तालिब के अशार सुना दे। तो जब हजरत मौला कायनात ने अशार पढ़े, आका अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा कर फरमाया, हाँ अली, मैं इन्हीं अशार की बात कर रहा। अब आगे चलिए कि हजरत अबू तालिब का सिलसिला आका अलैहिस्सलाम के साथ क्या रहा है। हजरत अबू तालिब का हुजूर की जात के साथ मामला ये था, जब से आका अलैहिस्सलाम उनके घर में तशरीफ लाए, उनके घर का मामूल ये था कि जब दस्तरखान लग जाता और हुजूर मौजूद न होते, वो अपने बच्चों को भी खाना ना खाने देते जब तक हुजूर तशरीफ न ले आते। वो फरमाते कि पहला लुकमा मेरा बेटा मोहम्मद खाएगा। और खुद फरमाते कि हुजूर जब दस्तरखान पर तशरीफ फरमा होते और जब हुजूर खाना तनावल फरमाते तो खाने के अंदर इतनी बरकत हो जाती कि जितने भी लोग होते वो खाना सबको काफी हो जाता। अब आप तसव्वुर कीजिए कि ये अजायबात और आका अलैहिस्सलाम के ये मौजज़ात ये हजरत अबू तालिब हुजूर के बचपन में देख रहे हैं, तो ऐसा शख्स हुजूर के ईमान का कायल, हुजूर की नबूवत का कायल नहीं होगा। फिर आगे चलिए, रात को ये उनका मामूल था, उन्होंने हमेशा अपने वालिद की उस वसीयत पर ऐसा अमल किया कि बेटे इसकी हिफाजत करना, इसको खुद से जुदा ना फरमाना, उस पर ऐसा अमल किया जब भी रात को सोते तो आका अलैहिस्सलाम को अपने बिस्तर पर अपने साथ लिटा करते, यानी कभी अपना जिस्म भी हुजूर की जात से जुदा नहीं किया। फिर वो वक्त आया कि तिजारत के लिए वो शाम रवाना हो रहे थे, तो आका अलैहिस्सलाम ने खुद इजहार फरमाया कि चचा जान, मैं आपकी जुदाई कैसे बर्दाश्त करूंगा, आप यहां मुझे छोड़े जा रहे हैं, मेरे वालिद नहीं, मेरी वालिदा नहीं, आप ही मेरे सरपरस्त हैं, सरबराह हैं। आका अलैहिस्सलाम ने इजहार फरमाया। इसको भी इमाम इब्ने इसहाक ने अपनी सीरत के अंदर नकल किया है, सीरत इब्ने इसहाक के अंदर। आका अलैहिस्सलाम ने जब ये रिक्वेस्ट की, हजरत अबू तालिब आका अलैहिस्सलाम को साथ लेकर शाम के सफर पर रवाना हो गए। अब जब एक मकाम आया जहां वो बुहेरा राहिब मौजूद था, ये उर्दन के अंदर ये जगह आज भी मौजूद है, उस बुहेरा राहिब का वो खानकाह भी मौजूद है और वो जगह भी मौजूद है आज भी। उस बुहेरा राहिब का आलम ये था कि अरब कहते कि हम जब से सफर कर रहे हैं शाम का, इस शख्स ने कभी हमारे लिए दरवाजा नहीं खोला, कभी पानी का एक गिलास तक हमें नहीं पूछा, और काफिले यहां पर ठहरते, थोड़ी देर के रुक के आगे चले जाते, ये उन लोगों से कोई कलाम ना किया करता था। लेकिन ये काफिला जिसमें आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, और वहां पर एक वाकया ये भी नकल हुआ कि जब इस काफिले ने पड़ाव डाला तो बुहेरा राहिब ने, वो जिसने कभी एक पानी का गिलास कभी नहीं पूछा था, उसने इन काफिले वालों को कहा कि मैं तुम्हारी दावत करना चाहता हूं, रात को तुमने खाना मेरे पास खाना है। तो ये जितने सरबराहान थे, कबीलों के सरबराह थे, बड़े अमायदीन थे, मुअज़्ज़िज़ीन थे, ये सब लोग वहां दावत पर चले गए और आका अलैहिस्सलाम को पीछे सामान के पास छोड़कर चले गए। जब वहां पहुंचे और बैठ गए तो बुहेरा राहिब खाना शुरू नहीं कर रहा था। तो सब ने पूछा कि क्या माजरा है। बुहेरा राहिब ने कहा, मैंने जिसकी खातिर तुम्हारी दावत की है वो तो बंदा मुझे नजर ही नहीं आ रहा। इन्होंने कहा क्या मामला है? उन्होंने कहा तुम पीछे किसको छोड़कर आए हो?
उन्होंने कहा पीछे हम अपने बच्चों को छोड़कर आए हैं। इन्होंने कहा नहीं, तुम एक खास आदमी को पीछे छोड़कर आए हो, उसको लेकर के आओ। फिर उसने आका अलैहिस्सलाम का जब तारुफ करवाया तो हज़रत अबू तालिब आका अलैहिस्सलाम को उस मजलिस में लेकर के आए, तो उसने कहा कि मैंने इनकी वजह से तो तुम्हारी दावत की है। फिर उसने बताया, उसने कहा कि मैं एक मुद्दत से जहां पर आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए बैठा हुआ, इस वजह से कि हमने अपनी किताबों में ये बात पढ़ी थी कि जब ये साल, ये महीना और ये रात आएगी तो हमारी किताबों में ये दर्ज था कि नबी आखिर ज़मां का गुज़र, उसके काफिले का गुज़र इस मकाम से होगा। तो मैं तो हुजूर के इस्तकबाल और हुजूर की ज़ियारत के लिए यहां पर बैठा हुआ। फिर उसने, जब काफिले वालों ने पूछा कि तुम्हें ये बात कैसे पता चली और तुमने कैसे पहचान लिया कि ये काफिला वही है या ये शख्सियत वही है, तो उसने कहा जब तुम्हारा काफिला मेरी तरफ चल कर आ रहा था तो मैंने देखा कि एक बादल तुम्हारे काफिले पर मुसलसल छाया करते हुए तुम्हारे साथ चल रहा है। फिर मैंने देखा कि तुम्हारा काफिला और आका अलैहिस्सलाम की सवारी जिस दरख्त के पास से गुजरती है वो सजदा रेज होकर आका अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर सलाम पेश करता है। फिर उसने कहा कि तुमने अब भी जिस दरख्त के नीचे तुम हुजूर को बिछा कर आए थे वो दरख्त, उस दरख्त के ऊपर वो बादल मौजूद था, उसने साया किया हुआ था, तो मैंने इन निशानियों से हुजूर को पहचान लिया। फिर उसने पूछा कि इनके कफील कौन है? हज़रत अबू तालिब ने कहा मैं हूं। उसने कहा क्या रिश्ता है? तो फरमाया कि मैं इनका वालिद हूं। उन्होंने कहा नहीं, आप इनके वालिद नहीं हो सकते, आप सच बताइए। हज़रत अबू तालिब ने कहा इनके वालिद फौत हो चुके हैं, ये मेरा भतीजा है। उन्होंने कहा इसलिए कि हमने अपनी किताबों में पढ़ा है कि वो नबी आखिर ज़मां जब दुनिया में तशरीफ लाएंगे तो वो दुर्रे यतीम होंगे। अब आका अलैहिस्सलाम का मेरा आपसे एक सवाल है, बुहैरा राहिब से ये जो सारी कन्वर्सेशन सुनी हज़रत अबू तालिब ने, और फिर बुहैरा राहिब ने कहा कि यहूदी इनकी जान के दुश्मन हैं, आप अगर शाम इनको लेकर के गए तो करीब है कि वो इनको अगवा कर लेंगे या इनको शहीद कर देंगे, तो आप इनको वापस ले जाएं। और आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू तालिब को सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ वापस भेज दिया। अब मेरा आपसे सवाल है कि ये जितनी गुफ्तगू हज़रत अबू तालिब ने बुहैरा राहिब से सुनी है तो क्या तारुफ हुआ है आका अलैहिस्सलाम का हज़रत अबू तालिब को? बताइए कि हुजूर कौन है? बोलिए कौन है? सारे दोस्त बोले कौन है? आखिरी, अल्लाह के आखिरी। तो जब आका अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत भी नहीं फरमाया था और आका अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 12 या 14 बरस थी, हजरत अबू तालिब तो उस वक्त से जानते थे कि यह अल्लाह के आखिरी नबी हैं। तो हजरत अबू तालिब से ज्यादा तो हुजूर का वाकिफ कोई नहीं था, जो दिन रात हुजूर को अपने साथ रखते थे, जो हुजूर के सबके से दुआएं मांगते थे। तो ये कहना कि अबू तालिब हुजूर की नबूवत पर ईमान नहीं लाए थे, उसकी वजूहात और थी, वो आगे चलकर हम बयान करेंगे। इस वजह से हम उनके ईमान के कायल हैं कि हमारे पास ये निशानियां मौजूद हैं कि हजरत अबू तालिब हुजूर को उस वक्त भी अल्लाह का आखिरी नबी जानते थे जब हुजूर ने अपनी नबूवत का ऐलान नहीं फरमाया था और हुजूर की उम्र मुबारक 12 या 14 बरस थी। फिर आका अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 25 बरस हुई। हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने निकाह का पैगाम भेजा हुजूर की तरफ। आका अलैहिस्सलाम ने जो मशवरा किया वो मशवरा भी हजरत अबू तालिब से किया इस रिश्ते का। और फिर जब ये तय पा गया कि आका अलैहिस्सलाम का निकाह सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ होने जा रहा है, तो उस निकाह का पहला खुतबा भी हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने ही दिया। हुजूर का हक महर भी आपने अदा फरमाया हजरत अबू तालिब ने। और ये वो लम्हा था कि जब आका अलैहिस्सलाम पहली मर्तबा सैयदा खतीजा हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के घर से हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में तशरीफ लेकर के गए। तो हाज़रीन गिरामी आगे देखिए
کہ ये मामला है हजरत अबू तालिब का आका अलैहिस्सलाम के साथ, और हुजूर पर जानिसारी का आलम क्या है। सुनिएगा, आका अलैहिस्सलाम ने जब अपनी नबूवत का इजहार फरमाया, ऐलान फरमाया, तो पहली शख्सियत जो हुजूर पर ईमान लाई हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाद वो हुजूर मौला कायनात अलैहिस्सलाम की है। तो हुजूर मौला कायनात को एक रोज हजरत अबू तालिब ने नमाज पढ़ते हुए देखा तो पूछा, बेटे ये क्या कर रहे हो? तो अर्ज की, बाबा जान ये मैं नमाज पढ़ रहा हूं। फरमाया कि क्या तुमने भी अपने भाई मोहम्मद के दीन को इख्तियार कर लिया है? अर्ज की, बाबा जान ऐसा ही है। अब सुनिएगा, फरमाया बेटे फिर मेरी तुम्हें नसीहत है और मेरी वसीयत है, जब तक जिंदा रहना तुम्हारे बदन के अंदर जान है, तुम अपने भाई से जुदा ना होना और अपनी जान को अपने भाई पर कुर्बान कर दे। अब ये नसीहत और वसीयत हजरत अबू तालिब हुजूर मौला कायनात को किस हैसियत में फरमा रहे हैं? हुजूर को नबी जानते थे या सिर्फ भतीजा होने की वजह से कह रहे हैं? फिर आगे चलिए, वो मशहूर वाकया कि आका अलैहिस्सलाम ने कुरैश के बड़े बड़े सरदारों को अपने घर में दावत दी और आका अलैहिस्सलाम ने उनको अपनी नबूवत का पैगाम सुनाया, तबलीग की, तौहीद की दावत दी। ये जो तौहीद की सबसे पहली दावत है, ये भी हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के घर में मुनक़िद हुई है। उसका एहतमाम, उसके ऑर्गेनाइजर, उसका खाने का एहतमाम करने वाले, लोगों को बुला कर लाने वाले और आका अलैहिस्सलाम की दावत के मेन ऑर्गेनाइजर, चीफ ऑर्गेनाइजर का नाम हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम है। फिर वो मौका आया, मैं मुख्तसर कर रहा हूं क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, चंद लम्हात और लूंगा आपके, 5 से 7 मिनट। फिर वो लम्हा आया जब कुरैश मक्का जिच हो गए और जमा हुए हजरत अबू तालिब के पास और आकर कहने लगे कि तुम्हारे भतीजे ने हमें बहुत परेशान कर दिया हुआ है, तुम इससे कहो कि ये क्या चाहता है। ये चाहता है तो हम इसको दुनिया का माल और दौलत देंगे, सबसे हसीन औरत के साथ इसकी शादी करवा देंगे, इसको अपना सरदार बना लेंगे, ये जो दावत दे रहा है इससे पीछे हट जाए। हजरत अबू तालिब आका अलैहिस्सलाम के पास आए, अर्ज की, भतीजे ये लोग मुझे पास ये पैगाम लेकर के आए हैं, बताओ तुम क्या कहते हो। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चचा जान अल्लाह की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, ये मेरे एक हाथ पर सूरज एक हाथ पर चांद रख दें, मैं अपने कही हुई बात से पीछे नहीं हटूंगा। हुजूर ने फरमाया, ऐ भतीजे फिर जान ले, जब तक मेरे जिस्म में जान है मैं भी तेरे साथ खड़ा हूं, तेरी हिफाजत करता रहूंगा। तो हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की ये जानिसारी है आका अलैहिस्सलाम। फिर आगे चलिए, ये कुरैश का जुल्म सितम बढ़ता चला गया, आका अलैहिस्सलाम की दावत और तबलीग के मराइल भी आगे चलते चले गए, यहां तक कि फिर वो मौका आया कि आका अलैहिस्सलाम की नबूवत का 7वां साल था। कुरैश ने फैसला किया, बल्कि यहां एक और वाकया कर दूं, एक शख्स था वो आका अलैहिस्सलाम के पास, बल्कि हजरत अबू तालिब के पास एक ऑफर लेकर के आया और ऑफर ये थी, उसने कहा कि एक बड़ा खूबसूरत नौजवान है अबू अम्मारा। उनको लगता था कि आका अलैहिस्सलाम बहुत हसीन है और हुजूर जवान है, तो ऐन मुमकिन है कि अबू तालिब के दिल के अंदर भतीजे की मोहब्बत पाई जाती है। तो उन्होंने उनको ऑफर की और कहने लगे कि हम आपको ये अबू अम्मारा देते हैं, आप अपना भतीजा मोहम्मद हमारे हवाले कर दें। हज़रत अबू तालिब ने जवाब दिया, उन्होंने फरमाया, बदबख्तो क्या कीमत लगाई है और तुम क्या सोचते और समझते हो कि तुम अपने बेटे को तुम्हारे सलामत रहें और मेरा बेटा मोहम्मद तुम ले जाकर उसको शहीद कर दो और उसके बदले में तुम मुझे ये ऑफर करते हो। फरमाया, तुम्हारी ये ऑफर भी अबू तालिब को हरगिज कबूल नहीं है। फिर कुरैश ने जब देखा कि आका अलैहिस्सलाम की दावत और तबलीग का रास्ता किसी सूरत भी नहीं रोका जा सकता, तो उन्होंने आपस के अंदर इत्तेहाद किया और उन्होंने कहा कि हम मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके साथियों का बाइकआउट कर देंगे, हम इनके साथ का ताल्लुक हो जाते हैं। जब हजरत अबू तालिब ने देखा कि ये सारे कुफार एक तरफ मुत्तहिद हो रहे हैं, काफिर सारे मुत्तहिद हो रहे हैं और अलायंस बना रहे हैं, हजरत अबू तालिब ने भी सारे कबीला बनु हाशिम को जमा किया और जमा करके उन्होंने बनु हाशिम का अलायंस कायम कर दिया।
और आका अलैहिस्सलाम की हिफाजत, हुजूर की पहरेदारी देने के ऊपर इन्होंने बैत की और हुजूर की हिफाजत के ऊपर अलायंस कायम किया। जब कुरैश ने देखा कि इधर बनु हाशिम का ये अलायंस बन गया है, उन्होंने ऐलान कर दिया और एक तहरीर लिखी, जिस तहरीर को बाइकॉट कहते हैं, मुकातिया कहते हैं। उन्होंने कहा कि हम बनु हाशिम का मुकातिया कर रहे हैं, और ये तहरीर लिखकर काबे के अंदर लटका दी। ये मुकातिया, जिसको मुकातिया अबी तालिब कहते हैं, इसको मुकातिया अबी तालिब इसलिए कहते हैं कि हज़रत अबू तालिब ने आका अलैहिस्सलाम समेत सारे खानदान बनु हाशिम को अपने घर यानी खानकाहे बनु अबू तालिब के अंदर जमा कर लिया। तो हुजूर की दावत का, हुजूर के दीन का मरकज हजरत अबू तालिब का घर बन चुका था। हुजूर की हिफाजत का मरकज, हुजूर का किला हजरत अबू तालिब का घर था। 3 साल तक जहां आका अलैहिस्सलाम ने तकालीफ बर्दाश्त की, भूख बर्दाश्त की, प्यास बर्दाश्त की, हुजूर के चचा हजरत अब्बास फरमाते हैं कि हमारे ऊपर इतनी तकालीफ थी और भूख और प्यास का आलम यह था, एक रोज हम घर से बाहर निकले, अंधेरा था, रात का वक्त था, मेरे पांव के नीचे एक नरम चीज आई, मैंने उठाकर खा ली। फरमाया मैं आज तक नहीं जानता कि वो पाक थी कि पलीत थी, वो क्या चीज थी, बस अपनी भूख मिटाने के लिए मैंने वो चीज भी खा ली। यानी इतना जुल्म और सितम था। अगर हजरत अबू तालिब आका अलैहिस्सलाम के दीन पर ना होते, अब सुनिएगा हजरत अबू तालिब की उम्र कितनी है इस मौका के ऊपर। इस मौका के ऊपर उनकी उम्र 80 बरस से जायद हो चुकी है। कितनी उम्र है उनकी? वो कह सकते थे कि बेटे मैं बुढ़ापे के अंदर आ गया हूं, हड्डियां जवाब दे गई हैं, 80 साल उम्र हो चुकी है तुम्हारी हिफाजत करते करते, तो बेटे मुझे इजाजत दे दो। या वो कह देते कि बेटे तुम अपनी बात से फिर जाओ। नहीं, उन्होंने एक भी जुमला और शिकवा आका अलैहिस्सलाम से नहीं किया। वो आका अलैहिस्सलाम की हिफाजत पर डटे रहे। इस बुढ़ापे के अंदर भी ये सारी तकालीफ आका अलैहिस्सलाम के साथ और सहाबा कराम के साथ शेब अबी तालिब के अंदर बर्दाश्त की हज़रत अबू तालिब ने। यहां तक कि वो दिन आया कि जब एक दिन अबू जहल, और वो पूरा तवील वाक़या है, ये सारे सरदार जमा हुए, इन्होंने प्लानिंग की कि हम बनु हाशिम के खिलाफ अपने अलायंस को मजीद मजबूत करते हैं। उन्होंने गुफ्तगू शुरू की तो वहां पर कुछ और लोग खड़े हो गए। उन्होंने कहा तुम ये सारा गैर इंसानी काम कर रहे हो, हम तुम्हारी इस मुआहदे और इस मुकाते के हक में नहीं हैं, हम इससे इख्तिलाफ करते हैं। इधर से हज़रत अबू तालिब चलते हुए आ रहे थे। अबू जहल ने देखा, वो खुश हो गया, खिल गया। उसने कहा अबू तालिब आकर कहेंगे कि हमारी बस हो गई, हम तंग आ गए, अब बस कर दो, ये मुकाते खत्म कर दो, हम अपनी बात से फिरते हैं, कमजोर शराइत पर कोई मुआहदा हमसे कर लेंगे। जब वो हजरत अबू तालिब करीब आए, उन्होंने कहा अबू तालिब क्या कहते हो? हजरत अबू तालिब ने कहा मेरे भतीजे मोहम्मद ने कभी हमने उनकी जबान से झूठ नहीं सुना। उन्होंने मुझे एक खबर दी है, खबर ये है जो मुआहदा और तहरीर तुमने लिखकर काबे के अंदर लटकाई थी, दीमक उस सारी तहरीर को खा चुकी है, उसमें सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी है। अब सुनिए हजरत अबू तालिब का क्या अकीदा था। वो अगर ये जानते होते कि ये सच्चे नबी नहीं हैं, तो वो कहते भतीजे मुझे किस आजमाइश में डाल रहे हो। उनके अकीदे में और अबू जहल और अबू लहब के अकीदे में फर्क था। वो आका अलैहिस्सलाम को उतना ही सच्चा जानते और मानते थे जितना सैयदना सिद्दीक़ अकबर सच्चा जानते। ये खबर पहुंची आका अलैहिस्सलाम तक, हुजूर की ये खबर हजरत अबू तालिब ने उनको सुनाई। और काबे के अंदर जब उस मुकातिया की तहरीर को देखा गया तो उन्होंने देखा कि वो सारी तहरीर दीमक खा चुकी थी। जहां पर अल्लाह का नाम था, दीमक ने उसको छोड़ दिया हुआ था। हज़रत अबू तालिब ने वहां नारा लगाया और कहा मैं तुमसे नहीं कहता था कि मेरा भतीजा मोहम्मद हमेशा सच कहता है। और दोस्तान मुकर्रम, ये तकलीफ बर्दाश्त करते करते जब शब अबी तालिब का आखिरी साल था तो हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का इस दुनिया से विसाल हो गया। और आका अलैहिस्सलाम शदीद गमज़दा हुए, शदीद गमज़दा हुए। अब आइए आखिरी बात आपको अर्ज कर रहा हूं कि हज़रत अबू तालिब ने अपने ईमान का इजहार क्यों नहीं फरमाया। उसकी वजह अर्ज कर रहा हूं कि वो थे मुमिन, लेकिन पूरे मक्का के कुरैश के कबीले के सामने अपने
ایمان کا اعلانیہ اظہار کیوں نہیں فرمایا؟ یہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نہیں کیا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب حضور اس واقعے کے بعد حضرت ابو طالب حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد حضور طائف تشریف لے کر کے گئے، طائف سے واپس آتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن اریقت حضور کا خادم تھا، حضور نے اس کو بھیجا چند سرداروں کے پاس، اور حضور نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ کون ہمیں پناہ دیتا ہے. اس وجہ سے کہ مکہ کا یہ قانون تھا، اس دور کا مکہ کا یہ ریاستی قانون تھا، انہوں نے آپس میں یہ انڈرسٹینڈنگ بنائی ہوئی تھی کہ کوئی سردار اگر کسی کو پناہ دے دیتا ہے تو چے جائے کہ پورے کے پورے مکہ کی اس کے ساتھ دشمنی کیوں نہ ہو. اگر کوئی سردار یہ کہہ دے آگے بڑھ کر میں اس کو پناہ دیتا ہوں تو ایسے شخص کے اوپر کوئی بھی شخص تلوار نہیں اٹھاتا تھا، ایسے شخص کے اوپر کوئی بھی شخص تلوار نہیں اٹھاتا تھا. حضور نے فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ ان میں سے کون ہمیں پناہ دیتا ہے. ان میں سے دو نے انکار کر دیا، اور مطعم بن عدی اس نے کہا کہ میں محمد کو پناہ دیتا ہوں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر حرم کعبہ میں داخل ہوا اور حضور سے عرض کی کہ آپ اپنی نماز ادا کریں، اور اپنے بیٹوں کو نیزے پکڑائے اور کہا کہ حضور کے ارد گرد کھڑے ہو جاؤ. جب ابو جہل اور باقی لوگوں نے یہ منظر دیکھا، انہوں نے کہا مطعم بن عدی کیا تم نے ان کی اتباع شروع کر دی ہے یا تم نے پناہ دی ہے؟ انہوں نے کہا میں نے ان کی اتباع نہیں کی، میں نے ان کو صرف پناہ دی ہے. تو دوستان مکرم، حضرت ابو طالب علیہ السلام آخری لمحے تک جو اپنا ایمان چھپا کر کے رکھا، اس کی واحد وجہ یہ تھی اگر وہ اپنا ایمان ظاہر کر دیتے مکہ کے قانون کے مطابق اہل مکہ ان کے ساتھ وہی سلوک کرتے جو حضرت حمزہ کے ساتھ تھا، جو حضرت عمر فاروق کے ساتھ تھا، جو سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ تھا، پھر وہ اکیلے حضور کی نہیں بلکہ حضرت ابو طالب کی بھی قتل کی سازشیں کرتے. حضرت ابو طالب ان کے قانون کو جانتے تھے، تو ابو بنو ہاشم کے سردار ہونے کے ناطے انہوں نے اعلان کر دیا محمد میری پناہ کے اندر ہے، محمد میری پناہ کے اندر ہے. تو انہوں نے اپنا مذہب جو اہل مکہ کا تھا انہوں نے کہا میں تمہارے مذہب کے ساتھ ہوں، لیکن اندر سے وہ حضور پر ایمان رکھتے تھے، جس کی یہ ساری مثالیں موجود ہیں کہ جب بھی حضور کی حفاظت کا وقت آیا انہوں نے کبھی بھی وہ ابو لہب کی طرح پیچھے نہیں ہٹے. ابو لہب بھی حضور کا چچا تھا، سگا چچا تھا، لیکن حضرت ابو طالب ہر لمحہ ہر لحظہ آقا علیہ السلام کی حفاظت پر معمور رہے، اور اتنی حفاظت کی کہ شیب ابی طالب کی تکالیف برداشت کرتے کرتے بڑھاپے کے اندر حضور پر اپنی جان قربان کر دی. بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حضور کی حفاظت، حضور کی ناموس کی حفاظت کرتے ہوئے جو ہستی سب سے پہلے شہید ہوئی اس ہستی کا نام بھی حضرت ابو طالب علیہ السلام. میں نے گفتگو کے آغاز کے اندر یہ بات عرض کی تھی کہ بے شک موقف دو ہیں، ایک ایمان کا ہے اور ایک عدم ایمان کا ہے، کفر کا نہیں ہے، عدم ایمان کا ہے. عدم ایمان کا معنی یہ ہے کہ لوگوں کے پاس وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دلیل نہیں ہے کہ ہم ان کے ایمان کی گواہی دیں. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کا ایک اصول عرض کر کے گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اس کے اندر 99 علامتیں کفر کی ہوں لیکن ایک علامت ایمان کی ہو، ہم اس کے ایمان کی گواہی دیں گے. کتنی علامتیں کفر کی ہوں اور کتنی علامتیں ایمان کی ہوں؟ اب آگے سنیے. انہوں نے فرمایا اگر کسی شخص میں 99 علامتیں ایمان کی ہوں اور ایک علامت کفر کی ہو پھر بھی ہم اس کے ایمان کی گواہی دیں گے، تو ہمارے پاس ساری کی ساری علامتیں حضرت ابو طالب کی ایمان کی ہی ہیں. ایک معمولی سی روایت ہے، ایک معمولی سی روایت جس میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں تجھ پر ایمان نہیں لاتا یا میں تجھے اللہ کا نبی نہیں مانتا. انہوں نے صرف اتنا اظہار کیا کہ بھتیجے میں اپنے اس ایمان کا اظہار نہیں کرتا، اگر کر دوں گا تو یہ لوگ تانا دیں گے. اور اس کے پیچھے بھی چھپا ہوا معنی یہ تھا کہ بیٹے یہ تیری جان کے در پہ ہو جائیں گے، جب تک میں زندہ ہوں یہ تجھے قتل نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے انہوں نے حضور کی جان کی خاطر اپنے ایمان کی قربانی دی کہ قیامت تک لوگ، اللہ رب العزت نے ایک امتحان رکھ دیا، ایک ترکڑی رکھ دی کہ کون حضور کی نسبت کا حیا کرتا ہے اور ابو طالب کی ایمان کی طرف جاتا ہے،
और कौन बदबख्ती करता है और हुजूर की निस्बत का भी हया नहीं करता, हजरत अबू तालिब पर भी ज़बान तान दराज करता है। तो हक ये है कि बेशक कोई शख्स उनके ईमान का कायल ना भी हो, लेकिन हजरत अबू तालिब का तज़किरा जब भी किया जाएगा वो खैर के लफ्जों के साथ किया जाएगा, क्योंकि उनकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ ये है कि उन्होंने हुजूर की खिदमत की है, उन्होंने हुजूर की जानिसारी की है, उन्होंने हुजूर के साथ वफादारी की है और आका अलैहिस्सलाम और ईमान की और इस्लाम की हमेशा हिफाजत की है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है हमें हजरत अबू तालिब जैसी हुजूर के साथ जानिसारी और वफादारी अता फरमाए।